Hi everyone, good evening once again. Welcome to another session of physics. Okay, so what we'll try to cover today is essentially the remaining part of yesterday's unit, where we basically try to figure out resistance of cell based on its length, cross-section area, material, because it depends on material also, right? So for different materials, you can have different resistance values. So we'll just try to utilize whatever information we gathered in previous class, and we'll try to apply in the cases where the shape of material is not uniform, it's not the normal case, or probably shape of or not just shape, we can have variable resistivity as well, है ना? Resistivity भी आपका depend कर सकता है किसी particular function के form में. So that is we'll try to learn today. But before we move on, let's first solve a question which utilizes this concept where we have to find some percentage change in some variable given other variables are going through very small percentage change. So it's like 1%. If say length is changing by 1%, 2%, 3%, very small percentage, should be very small percentage. Only then we'll get the precise, close to precise result. Not exactly precise result, but approximately it will be same as whatever the answer you would be expecting if you use it calculator and try to figure it out. So just to sum it up, so let's suppose you have a variable x which depends on 2-3 inputs. Let's say a square, b minus 3, and maybe z, c raised to power, let me write it as 1. Okay, c raised to power 1 is basically c. So if you need to figure out percentage change, although we discussed in previous class, but this you don't need to know the process, because anyways once you study differential equation, differentiation, the differential calculus part completely, you will get to go through these sort of problems. But for the sake of physics, all we need to know is how exponent values will help in finding the final result. So if you are interested in finding percentage change in x, then all you need to do is multiply percentage change of a with 2, of b with minus 3, of c with 1. So we'll be basically writing 2 times percentage change in a minus 3 times percentage change in b. So exponent values आपको basically multiply करना है percentages, plus 1 times, because exponent 1 है वहां पर, percentage change in c. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. बस ये कहानी जो है ना आपको दिमाग में रखना है कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं. और ये बहुत काफी कॉमन है, आगे भी आपको बहुत जगह दिखेगा. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड सी इफ वी गेट द करेक्ट रिजल्ट और नॉट. सो द क्वेश्चन सेज we need to find the percentage change in resistance if the length of conductor is increased by 2% by stretching it. वो भी important है, because आप stretch करें या नहीं करें उससे रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ता है. by stretching it. ठीक है, तो पहले तो क्या हम लोग इसको जो ओल्ड देसी मेथड है उससे सॉल्व कर लेते हैं, एंड वहां से जो रिजल्ट आएगा फिर ये अप्रोच, शॉर्टकट अप्रोच, इट्स नॉट शॉर्टकट एक्चुअली, प्रॉपर अप्रोच है इसका, है ना. वो तो क्या फाइनल रिजल्ट आप बस यूज करें. सो ओल्ड मेथड अगर हम लोग यूज करें उसमें क्या थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट दैट इज फाइन. सो लेंथ आपका जो है वो चेंज हो गया ना, लेंथ चेंज होके कितना हो गया, लेंथ प्लस इंक्रीज हुआ है कितना, 2% ऑफ एल, विच बेसिकली मीन्स एल प्लस 2/100 टाइम्स एल. अगर आप एल को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.02. ठीक है, सो न्यू लेंथ इज 1.02 एल, दैट इज योर न्यू लेंथ. ठीक है, ये आपका ओल्ड वैल्यू था और ये आपका क्या है, न्यू लेंथ वैल्यू है. ठीक है, एंड you know
area, if initial area, let's say आपने assume क्या A, so area will remain, volume will remain constant. So initial area, initial length will be equal to new area, which you don't know, multiplied by new length, which is 1.02 times L. तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपको एरिया मिल रहा है ओल्ड एरिया डिवाइड बाय 1.02, ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से अगर रेजिस्टेंस का पहले वैल्यू इनिशियली जब रेजिस्टिविटी रो था, लेंथ एल था, ए था, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा. एंड न्यू रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी रो एल. एल आपको न्यू लेंथ लिखना है विच इज एल टाइम्स 1.02 डिवाइड बाय आपको न्यू एरिया यूज करना है विच बाय ए ओवर 1.02, ठीक है. सो ये इवेंचुअली आ जाएगा आपका 1.02 का स्क्वायर टाइम्स आर. रो एल बाय ए को आई कैन राइट आर, राइट. नाउ 1.02 into 1.02 है ना. मेरा मैथमेटिक्स बहुत खराब है, सो लेट मी जस्ट यूज कैलकुलेटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.0404 टाइम्स आर. आई होप कैलकुलेटर ने सही निकाला एटलीस्ट. सो लेट्स ट्रस्ट दिस कैलकुलेटर. एंड्रॉइड कैलकुलेटर है ना, गड़बड़ कर देगा. सो ओके, सो लेट्स फाइंड परसेंटेज चेंज नाउ, ठीक है. तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं आप, न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू माइनस ओल्ड रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइड बाय, दिस इज इंक्रीज एक्चुअली है. ये जो आप लिख रहे हैं दिस इज, यू कैन से इंक्रीज और चेंज, दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम आएगा इस केस में. सो आर प्राइम माइनस आर ओवर आर इंटू 100, ठीक है. तो ये आप डालेंगे तो ये आपका रफली आ जाएगा 100 से, दिस विल बिकम 4.04% है ना, प्लस में आएगा विच मीन्स बेसिकली इंक्रीज हो रहा है. सो अगर आपने ऑलरेडी परसेंटेज इंक्रीज लिखा देन इज फाइन. 4.04% का बेसिकली दिस इज इंक्रीज, पॉजिटिव वैल्यू विच मीन्स रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड बाय 4.04%, ठीक है. अब आपको क्या करना है, लेट्स अप्लाई दिस मेथड जो अभी हम लोगों ने लर्न किया है, ठीक है. सो आप न्यू मेथड लगाते हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल परसेंटेज चेंज, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. आप बड़े परसेंटेज चेंज के लिए लगा सकते हैं, बट आप जितने बड़े परसेंटेज चेंज के लिए लगाएंगे उतना गलत रिजल्ट आएगा आपका, है ना. मतलब आपका जो रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए उसमें उतना बड़ा गैप होगा. सो इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, है ना. एग्जैक्ट तो आपको मिलता नहीं है कहीं पे भी, ठीक है. होल कैलकुलस, आइडिया ऑफ कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस इज बेसिकली अबाउट एक्यूरेसी. Your answer should be as close as possible, but it need not to be exactly same. Okay, it doesn't matter. So anyways, physics without precision makes no sense. Okay. So yeah, so let's try to figure out. So first you need to write formula. ना आपको ये method apply करने के लिए आपको पहले formula ही लिखना पड़ेगा. So you write rho L by A, ठीक है. But आपको पता है कि volume constant होता है, right? है ना. You know already volume क्या आपका constant होता है. एंड वॉल्यूम का वैल्यू इज ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ, है ना. सो देयरफॉर वी कैन राइट, हाँ यहाँ पे समझने की जरूरत है. मैंने क्या बोला कि ये एबीसी जो है ना ये इंडिपेंडेंट इनपुट्स होने चाहिए. एंड ऐसा नहीं कि ए को चेंज किया आपने तो बी चेंज हो गया, तो फिर क्या है फॉर्मूला रॉन्ग आंसर देगा आपको. सो यहाँ पर इशू क्या है, एल और ए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. यू कैन क्लियरली सी है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, एल और ए दोनों रिलेटेड है. कैसे, वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो इट मींस अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको किसी एक इनपुट में रखना पड़ेगा. इधर आप लेंथ यूज करो या फिर आप एरिया यूज करो. एनीवेज लेंथ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, सो विल स्किप दैट पार्ट. सो विल सिंपली रिप्लेस एरिया विथ वी बाय एल. तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम रो बाय वी इंटू एल स्क्वायर. इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है. कांस्टेंट टर्म अगर आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो उससे परसेंटेज चेंज में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है. सो दैट पार्ट यू कैन रिमूव. सो नाउ आई कैन सिंपली राइट percentage change in R will be equal to 2 times percentage change, है ना. ये 2 कहां से आया, ये 2 यहां से आ रहा है, ठीक है. दिस हाँ या सो दिस वैल्यू विल बिकम 2 times percentage change in length, ठीक है, which is L. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि जो इसका अप्रोच होता है, जो मेथड होता है उसमें लोग दोनों साइड लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं. तो अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने लॉग लिया है तो फिर वो रिजल्ट सिंपली 0 मिलेगा आपको. सो नाउ यू कैन राइट 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2%. सो 2% से आप मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ गया, 4% आ गया, विच इज वेरी क्लोज टू आवर ओल्ड आंसर विच वी गॉट फ्रॉम ओल्ड मेथड, ठीक है. सो यहां से जो आंसर में मिला था 4.0% मिला था, हमें जो आंसर मिला दैट इज 4%, वेरी क्लोज. 4.04 और 4 इज इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम बट ठीक है, काफी हद तक सेम है. सो यस, ये क्या है, टाइम सेविंग मेथड, और ये एक्चुअली आप काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. और इनफैक्ट जितना परसेंटेज चेंज आपका स्मॉल आएगा उतना क्लोज आपका रिजल्ट होगा एक्चुअल रिजल्ट के, ठीक है, जो प्रॉपर कैलकुलेशन करके आना चाहिए था, ठीक है. सो दिस इज ब्यूटी ऑफ
differential calculus, right? So let's use it where and wherever possible. ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है. So इसको नोट करो फटाफट and let me know if there is any doubt. इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताओ. So this part also is important. ये वैल्यू क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है ना, which means ये क्या है? परसेंटेज इंक्रीज है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, गड़बड़ मत कर देना. नोट करो फास्ट किड्स. लेट मी नो ऑन चैट. चैट पे रिप्लाई करो बच्चों, फास्ट नोट कर लेंगे. ओके, नहीं नोट कर लिए सब? बोलो किस कंफर्म फास्ट, फिर आगे चलेंगे हम लोग. डन. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सेकेंड मेथड में सेकेंड स्टेप रिपीट करना. ओके, लेट मी चेक सेकेंड मेथड का सेकेंड स्टेप क्या है. हाँ, यहाँ पर मैंने क्या कि लेंथ और एरिया है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो एरिया में चेंज आएगा. तो दोनों इंडिपेंडेंट इनपुट नहीं है. ठीक है, इंडिपेंडेंट इनपुट के लिए एक्सप्रेशन बनाया गया. तो इसका मतलब क्या, आपको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. या तो आप लेंथ को एरिया के फॉर्म में लिख लो, या फिर एरिया को आप लेंथ के फॉर्म में लिख लो. ठीक है, सो मैंने क्या किया, वॉल्यूम जो आपका एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ एरिया की जगह आई कैन राइट वी बाय एल. तो अगर आप एरिया की जगह वी ओवर एल लिखोगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा रो एल स्क्वायर ओवर वी. रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है, तो उस मटेरियल के लिए तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू. वॉल्यूम क्या है, उस पर्टिकुलर डिजाइन का जो आपने इनिशियली लिया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो हमेशा फिक्स ही रहेगा. सो रो ओवर वी इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो एल स्क्वायर सिर्फ इनपुट वेरिएबल बच गया हमारा, है ना. क्लियर है विवेक? इज इट क्लियर नाउ? अभी ठीक है. Okay, so let's solve some more problems, not based on this concept exactly, but yes, in general.
सब लोग ट्राई कर रहे हैं, बताओ फटाफट। ठीक है, तो आपको 3 डिफरेंट वायर्स दिए हुए, और हर एक का मास का रेशियो आपको गिवन है, और हर एक का लेंथ का रेशियो आपको गिवन है, एंड यू नीड टू फिगर आउट कि उनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या आएगा। फास्ट, सब लोग ट्राई करो। क्या रहा आंसर? चैट पे रिप्लाई करो बच्चों से। एनीवन? ओके, लेट्स ट्राई। सो रेजिस्टेंस का रेशियो में फाइंड करना है, राइट? सो L1 A2 इस तरह से, L1 A1 L2 A2 इस तरह से फॉर्मेट में लेकर चलते हैं। तो रेजिस्टेंस R1:R2:R3, ये रेशियो अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रो डेंस, सेम मटेरियल का डेंसिटी आपको सेम कंसीडर करना है। सो दिस विल बिकम रो L1/A1। मटेरियल सेम है, विच मीन्स डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी है ना, दोनों आपको सेम कंसीडर करना है। ठीक है, सो रो जो मैं लिख रहा हूँ 9:4:1 है ना, किसी का आंसर आया है विच इज रॉन्ग। ठीक है, सो रो इज रेजिस्टिविटी। सो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया आपका। सेकेंड रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा रो L2/A2, एंड थर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा रो L3/A3। ठीक है, तो यहां पर क्या हमें लेंथ का रेशियो तो गिवन है एंड मास का रेशियो गिवन है। ठीक है, बट अगर हमें ये रेशियो इंफॉर्मेशन चाहिए रेजिस्टेंस का रेशियो का, तो आई नीड एरिया का रेशियो विच आई डोंट नो। सो एक काम करते हैं, मास के रेशियो से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मास का रेशियो M1:M2:M3 जो है वो आपका 1:2:3 गिवन है। ठीक है, नाउ मास में क्या क्या आ जाएगा आपका? डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी को लेट्स राइट विथ D। ठीक है,
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है आपको, सिलिंड्रिकल डिजाइन होते हैं आपके वायर के, ठीक है। सो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ एल है तो ए इंटू एल हो जाएगा डेंसिटी। सो A1 L1 आई कैन राइट, है ना। सिमिलरली DA2 L2 आई कैन राइट, DA3 L3। ये क्या होगा, मास हो गया आपका अलग अलग वायर्स का, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है A1 L1 A2 L2 A3 L3 है ना, इसका ये आपको एक रेशियो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास L1 L2 L3 का हमें रेशियो पता है, लेंथ का रेशियो पता है 3:2:1 है। सो इट मीन्स आई कैन राइट 3A1 2A2 L3, है ना, सॉरी माय बैड। सो A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1:2:3, ठीक है। तो यहां से हम लोग का एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहां से एरिया का रेशियो क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो रहा है, राइट। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अज्यूम कर लेते हैं, जैसे ए अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो विच मींस 3A1 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो यहां से A1 कितना आ गया आपका A/3, ठीक है। और 2A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो मैंने वो ए कंसिडर किया। सो 2 इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ से A2 मुझे क्या मिल रहा है, दिस इज सिंपली ए। अगर A3 के लिए लिख रहा हूं मैं तो A3 विल बिकम 3 टाइम्स ए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली वी गॉट एरिया का रेशियो, यहाँ से हमें एरिया का रेशियो मिल गया। सो A1 is to A2 is to A3, ये आपका कितना हो रहा है A/3 A और 3 है ना। सो दिस इज A/3 is to A is to 3A। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना आई गेस, तो दिस विल बिकम, ए तो कैंसिल ही हो जाएगा राइट साइड का, एंड 1:3:9 हो जाएगा ये रेशियो, ठीक है। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रो हटा देते हैं, सब में ही है वो, L1 L2 L3 है ना, ये न्यूमेरेटर में, और उसका रेशियो 3:2:1 है। सो 3:2:1, ये तो पहले मैंने लिख लिया। डिनोमिनेटर में आपका A1 A2 A3 और दैट इज 1:3:9, सो 1:3:9, ठीक है। अब ये रेशियो ढूंढने के लिए लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 9। सो 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 27:6:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया, ठीक है। लेट मी नो किसी को अगर इसमें गड़बड़ लग रहा है।